In the hustle and bustle of our daily lives, we often forget to pause, think, or even breathe properly. But what if there was a simple and an easy way to reclaim that inner peace, to bring a sense of harmony and balance back in your life? Well, that's exactly what we're going to talk about today in this episode, and which also coincides with the International Day of Yoga 2023. And well, through Hatha Yoga, it is very possible. And who better to guide us on this topic than a very dear friend and expert that we have in the studios with us today. Welcome, Rupila, who is a certified Hatha Yoga expert, instructor, artist, and of course, like I mentioned, first up, a dear friend. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me here. And it's a pleasure to be amongst you all again. Absolutely. So, first up, hashtag trending, breaking the charts, Hatha Yoga. What is it all about? Hatha Yoga, as the word signifies, Hatha means one meaning for the word Hatha is stubborn, being stubborn and being adamant. Hatha karna. So it is actually that. I mean, come to think of it, because when you're doing these asanas in Hatha Yoga, your body is at breaking point sometimes, and it's like, I just can't do it. The body says I can't do it, and you are at it. You say, no, I am going to. You have to do it. Your system tells you have to do it. So that's the hut that you have with the body, and then the mind says, I've had it. I'm just not going to be able to do this. And you break those limitations and you continue with the postures. So that is Hatha in Hatha Yoga. But the true meaning of Hatha is Ha means sun and Tha means the moon. So in the yogic system, it is said that you have the sun and the moon within your system, within your body. And when you bring your body via these postures, you bring your body to a certain alignment so that the sun and the moon are balanced within you, within your system. So it is basically aligning Hatha Yoga. The term yoga would actually signify is aligning the internal system, the cosmic, the internal geometry of your system with the cosmic geometry. So that your system comes to a balance and everything gets downloaded automatically. Fantastic. So from the universal database, whatever. All right. So how did you start your journey with Hatha Yoga, and what inspired you to start this journey? For me, I've always been doing yoga, different types of yoga, and being an avid horse rider. I had a few bad falls initially, when I was learning riding, and horse riding is synonymous with a lot of falls, but yeah, it's these, some of them were like pretty major falls with broken bones and things like that. But and one factor, the key factor which helped me get back to riding and get back to riding in a phenomenally short time was yoga. In fact, I personally too, I can vouch for that, because I also have back problems, and it was a combination, of course, of yoga, Ayurveda, homeopathy, all of these to bring me back into shape and whatever. So totally can understand that. So tell me something. So there's a lot of myths attached with yoga and a lot of things. So couple of myths that yoga is just about stretching. Is that so? Just take on a couple of them. So what's your take on these that yoga is about stretching? Is it all that there is, or you think there's more to it? Stretching is a major part of yoga. And through stretching and getting into certain yogic asanas, it involves an immense amount of stretching. Stretching,
just strengthens the sinuses and the ligaments which holds the muscular and the skeletal system together. So, the importance that is given to stretching is underestimated, I feel. Right. It is phenomenally important to stretch. If you look at the animal world, if you look at cats and dogs, if they get up after a long period of sitting down or lying down or after sleep, the first thing a cat or a dog would do is to stretch themselves out before getting into any kind of other movement. Right. True. So, if somebody has to start their journey with Hatha Yoga, they need to understand how and what is it, how is it different from, say, Vinyasa Yoga, or there's so many yogas now, but I think Hatha Yoga and Vinyasa Yoga are the most ones that are talked about. So, is that something that you might want to share something on? Okay, now here I would not, I'm not the right person to comment on Vinyasa Yoga because I haven't practiced that. I haven't practiced Vinyasa, but Hatha Yoga is, like you said, stretching. We were talking about stretching earlier. So stretching is, let me just explain in a short this thing. Like when your body is in a state of stillness for long periods of time, like after sleep. So what I have, the lubricating fluids in the body tend to settle down. So to get the lubricating fluids moving, they tend to settle down at the joints. To get the lubricating fluids moving, stretching is extremely beneficial. Right. And likewise, like you said, how is Hatha Yoga different from other practices? Hatha Yoga prepares your body for a certain sense of discipline that you can follow to explore inner dimensions. I would say the higher dimensions you can explore once your body supports you. Right. When you have to sit in sadhana for some time, for a certain period of time, if your body is prepared and ready for it, it becomes more pleasurable. You can sit and explore higher dimensions within you. So, which would imply that Hatha Yoga is not just about the physical asanas, but also about, say, sadhana, meditation, or developing your mental faculties as well? Hatha Yoga actually helps you break all mental limitations and all the physical limitations that you think that because of the Hatha that you're doing, because there's a stubbornness of continuing to do the asanas. Right. And it prepares your body to a phenomenal capacity, and the muscle memory, over a period of time, the muscle memory kicks in and you can sit comfortably, cross-legged on the ground for long. I've seen people where, when I started out initially, it was difficult to just sit for long periods because we are so not used to sitting on the ground, which itself is, our lifestyles are very detrimental to our health these days. You have long hours of sitting on these cushiony chairs, which is where the posture gets totally disaligned. True. And I can see our team is already stretching behind in the cameras and it's trying to, we're not that stubborn and get things so excellent. So, in terms of the benefits then, so we're talking about physical benefits, we're talking about mental benefits, of course. Yes, there's a lot right? of So, and then of course comes the emotional benefits as well. So, if you're mentally stable and things, so it would help you to also be able to focus and be there, present in the moment. See, besides the physical benefits, the physical these are the side benefits of doing yoga. Right. What yoga actually does is much more. It aligns your system to its natural, brings your system to its natural alignment, and there is a lot of mental clarity. There's a sense of balance which sets in, and there's a state of stillness that you reach, so that it is so calming. And Venki, I've noticed that whatever your external situations are, largely they are a projection of your internal state, like they say. So if your internal state is in a state of balance, you are very well equipped. You are way better equipped to handle the external. Agreed.
I totally agree with that. So, any tips for somebody who's just starting out on Hatha Yoga, beginners guide or steps, anything that you would want to advise somebody who's wanting to start on this journey of Hatha Yoga? Yes, I would say that Hatha Yoga is an extremely, extremely powerful practice. It prepares your body beautifully. It gets you to a state of fitness, which is more than any gym can bring you. And also, it strengthens your internal system phenomenally. Your stamina improves immensely. Your mental, besides the mental clarity and strength, and Right. it just calms it. Like I said, it just brings so many, opens up so many dimensions within you, and opens up immense possibilities for you. You'll see that the time period it takes you to do a particular job decreases drastically once you're in a state of that level of fitness. Because you're more productive now, you're able to focus, you're more stable, Yes, that's right. You're better more, utilization of time. yes, better utilization of time. Multitasking happens just so fluidly. So you're automatically upgrading your processor to the latest technology which is available. Yes. All right. Yes. Fantastic. Yes, and yeah, besides that, I would like to say to the beginners, I would just say that please start a yoga. It is not difficult at all. It is something you owe to your body. You owe this to your system. Yeah. That you, it is a phenomenal vehicle that we are traveling in, and the universe has gifted us, and we need to get it back to its alignment. And it is an extremely powerful practice. And the only, I would say that one word that will sustain you through this whole thing is to just persevere. Right. Yeah. So no gain without pain. Yes. But the pain is, of course, so you starting out initially with yoga, so you would naturally, your body will not be used to it with all the twists and the the bending and the stretching, etc. It might seem impossible. Even for me now, I mean, my journey is, I do breathing and pranayams and everything pretty regularly, but because of my back condition, I'm not being able to do, or I can't do some of the yoga. So that, of course, is important as well. I think if you do have a medical condition, then please first consult a certified doctor or your physician and check what is appropriate for you, for your age, for if you have a health ailment, and of course if you're expecting, if you then of course as well. So that is also very, very important. It's not that you just start off on something just because you heard about it and it's trending or for whatever reason. Also do that due diligence, take the precautions. So great. Anything else that one should keep in mind when you're doing Hatha Yoga? Is the diet and other things as well, is that also part of the Hatha Yoga regime? Yoga, of course, is probably a branch of Ayurveda, or in a way. So are there anything particular to be followed? Yes, you need, with Hatha Yoga, there is this misconception that it is, too many twisting and too much of twisting and turning in to the body, complicated asanas. It's not that difficult, let me tell you that. If I could do it, anybody can do it. I would Even say I can? if I can, everybody Right. can. That is Sure. my thing. But yes, there is this, the diet of course supports you, prepares your body better to be able to, makes it more supple. So if you have a sattvic diet, that is more beneficial, and follow an Ayurvedic diet, which is more millets and more fruit, and you increase your intake of more of fruits and vegetables, so they're easily digestible, helps the system to flush out the toxins. So it makes the body more supple. Alongside, it just aids the process of Hatha Yoga. And of course, another thing which is very a big misconception, Venki, is that it's only these complicated asanas and the difficult upside down hanging postures that you're supposed to do in Hatha Yoga.
which is very, they say that they are very powerful, and that's the big misconception. But we once you start doing Hatha Yoga, you realize that the subtlest things, like pranayama, Right. and you know, the muscle stretch, the simple stretching, simple stretches are phenomenally powerful, for your system. Like the neck stretches and the shoulder rotations are extremely powerful, to, you know, release all the tension in the muscles, get your body to soften up, because in this, I would say that the most powerful things are the simplest to do. I agree. In fact, that's something, you know, the beauty of yoga is that you can do it anyway. You don't need any equipment. You don't need to be worried about the weather. You could be where you are. I mean, you could be working, you could be sitting, you could be driving, you could still do something. So it could be breathing, it could be just simple stretching, as you said, on the shoulders of your, you know, hands rotating, etc. Work on your joints, etc. So you could do it any. And that reminds me that we will bring you videos on that as well. In fact, if you want videos on that, please do comment, and of course do like and subscribe the channel as well. It helps us to keep going, keeps us motivated, and let us know what you would want to know next, so that we can come up with those videos as per, you know, whatever the demand is. So of course on healthyram.com you can avail the services of our wellness experts, you know, like Rupila and others too, if you want to consult one-on-one. And not only that, we also offer corporate workshops. So in case you are interested, you want to get it done for your entire organization, could be yoga, Ayurveda, meditation, art for healing, anything at all, anything related to wellness of the body, mind and spirit, you know, healthyram.com is the destination to seek and to go to. We're just a click away. Please log on to healthyram.com, share us with your friends, family, anybody you think might be benefited from what we share with you. And of course, now we shall move on to International Day of Yoga celebration. So get your mats out, no excuses, start doing yoga, and you would find that it's made a drastic difference, as it has to me and of course to others as well. So see you soon. आप सभी को सादर प्रणाम। प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में। सभी एक स्वर में ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सांस लीजिए।
संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोले, हाथों को वापस अपना जगह ले आई। अब हम चालना क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ शुरू करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाए। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। दाई तथा बाई ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ। अब श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाए, ट्विस्ट टू राइट साइड। ट्विस्ट करें सभी लोग, पीछे के लोग भी। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाए, वापस आइए श्वास लेते हुए। पुनः एक बार श्वास छोड़े, सिर को दाई तरफ ले जाए, ट्विस्ट इट स्लोली। वापस आइए सांस लेते हुए। आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़े, सिर को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को दाई से बाई ओर गोलाकार 2 बार घुमाएं। रोटेट द नेक ट्वाइस। अब इसी क्रम को पुनः विपरीत दिशा में 2 बार घुमाएं। बहुत बढ़िया। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपना जगह ले आए, विश्राम करें। अब हम आगे बढ़ते हुए स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले आए। आराम से श्वास प्रश्वास के साथ दोबारा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, पूर्ण ढंग से। बहुत अच्छा कर रहे सभी लोग। स्ट्रेच करें थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले आइए, विश्राम करें। योग अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ
स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। अब विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे, श्वास लेते ऊपर, और एक बार श्वास ऊपर नीचे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम करें, आंखें बंद करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया करेंगे। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी रखें। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। वेरी गुड। वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट करें, कमर ट्विस्ट करना है इस बार। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। अब श्वास भरते हुए मध्यम में वापस आइए। हाथों को भी वापस ले आए, विश्राम करें। वापस आइए। थैंक यू। विश्राम करें। अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए, स्क्वाटिंग पोजीशन। थोड़ा सा और झुके, और झुके। यस, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर आए। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। श्वास भरते हुए पहले जिसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी नीचे कर लीजिए, विश्राम करें। अब हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़े, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। पूरा शरीर को पहले स्ट्रेच करें। हो सके तो एड़ियों को उठाए, पंजों पर संतुलन बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है, लेकिन किया तो बढ़िया है। यंगस्टर्स बहुत है यहाँ। अब एड़ियों को नीचे करें। स्लोली हाथों को भी वापस ले आए, विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ी, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को भी मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पूरा स्ट्रेच करें। नमस्कार मुद्रा में वृक्षासन। जिन लोगों को बैलेंस नहीं कर सकते वो पैर को नीचे रखें, लेकिन इस बार नमन करेंगे पृथ्वी को नमन करेंगे, सूर्य भगवान को नमन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए, पैर को भी नीचे रखें। अब हम बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए, आराम से। अब अपने हाथों को ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए हथेलियों को दोबारा मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। वृक्षासन स्ट्रेच करें। दोनों हाथों को जोड़िए, नमस्कार मुद्रा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद करें, पैर को भी नीचे लाइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए, बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे, आंखें खुले रहे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है आराम से करें, ज्यादा झुकना नहीं है। बेस्ट एक्सरसाइज है, छाती खुल जाती है, श्वास बंद। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को भी पहले जैसे स्थिति में ले आइए। अगले आसन करने से पहले थोड़ी देर विश्राम करें, लंबा सांस लीजिए।
जब भी हम पीछे झुकते हैं श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाता है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को कमर दर्द है वो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच अब 4 से 6 इंच की दूरी रखें। श्वास भरे, हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए। पूरा दोनों हाथों को स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए कमर को आगे खींचते हुए आगे झुकिए। धीरे धीरे आगे झुकिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। बहुत सुंदर और विहंगम दृश्य इस प्रांगण में। पूरा दुनिया को संदेश दे रहे हम एक है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, दोबारा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पैर को भी जोड़ लीजिए। आंखें बंद, थोड़ी देर विश्राम। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाईं तरफ, राइट साइड। सब लोग राइट साइड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं। सभी लोग दाईं तरफ अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए। मध्यमा उंगली को देखिए, एक्सीलेंट। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा करें। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाए। अभी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं। झुकते जाए, झुकते जितना हो सके तो इतने, न हठात न बलात्। शरीर के क्षमता के साथ करना है। दोनों पैर को सीधा करें। अपने सिर को ऊपर धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को भी सीधा करें। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को भी वापस ले आइए। थोड़ी देर विश्राम करें। आंखें बंद करके दोनों पैरों को जोड़िए, विश्राम करें। अब हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से सभी अपने अपने स्थल पर बैठ जाइए। आपने बैठ जाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर सीधा कर लीजिए। लंब कोण आकृति। ये दंडासन है, सिंपल है, बेस्ट आसन है। यहीं से हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। दोनों तलवों को मिलाइए। ज्वाइन योर बोथ द फीट। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। होल्ड योर टोस। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले जाइए। सीधा बैठ जाइए। भद्रासन शिव जी का भी आसन है। आंखें बंद करके आसन का अभ्यास का अनुभव करें। जैसे जैसे आसन स्थिर हो जाता है, सुख प्रदान हो जाता है, श्वास रुक जाती है, ध्यान की ओर मन बढ़ जाती है। वही भद्रासन। धीरे से दंडासन में वापस आइए। विश्राम करें। आगे बढ़ते हुए 4 आसनों का सिलसिला, एक के बाद 4 आसन अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन। जो वज्रासन में बैठ सकते थे करें, अदरवाइज सुखासन में बैठे। जिन दोनों को घुटनों में दर्द है सावधानी के साथ अभ्यास करें। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। फर्स्ट क्लास। दोनों पैरों को अंगूठे मिले हुए, हाथों को घुटनों पर रखे। बहुत लोग इस आसन में ध्यान भी करते हैं। हम लोग कमर और गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर विश्राम करें। प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, लेकिन दबाव नहीं डालना है। अब आगे बढ़ते हुए यहीं से अर्ध उष्टासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड ऑन योर टो, इट्स ऑन नीज। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। पूरा छाती खुली हो। कोविड के समय पर यह आसन बहुत कायमत किया है।
लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ 10-20 सेकंड रुके आसन में। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास प्रश्वास की अनेक बीमारियों को रोकथाम करने में मदद करते हैं। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। थोड़ी देर तक विश्राम करें। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर है, एक के बाद एक। श्वास लीजिए, हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और थोड़ी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहे। बहुत सरल महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन करने से पूरा तनाव मुक्त हो जाते हैं। देख लीजिए, आप अनुभव कर रहे हैं। योग अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, एक्सपीरियंसल करना है। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। यही से हम उत्थान मंडूकासन करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे दोनों हाथों को ले मोड़ी। आपको दिखा रहे हैं वहां सामने। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। सीधा, आंखें बंद करें। बहुत लोग हम बैठकर काम करते हैं। कमर दर्द, सिर, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन हो गया। हर रोज 1-2 बार उत्थान मंडूकासन से अनेक कमर की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आइए। घुटनों को भी मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में आ जाइए, वज्रासन में। आहिस्ता दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें, विश्राम करें, विश्रामासन। स्ट्रेच बोथ द लेग्स, सिट स्ट्रेट। एक्सलेंट। अब हम वक्रासन बैठकर किए जाने वाले आखिरी आसन है। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटनों के पास रखिए। आराम से करें। बाई अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। राइट ट्विस्टिंग। अपना अपना व्यवस्था करें। कुछ लोगों को ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं आते, घुटनों को पकड़े, थोड़ा सा घूमिए। बहुत बढ़िया। ट्विस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्वास भरते हुए वापस आइए। यही आसन को हम बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। लेफ्ट ट्विस्टिंग, जितना हो सके तो इतने। थोड़ा गर्दन तो घुमाइए पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत मददगार आसन है। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। थोड़ी देर विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए। सिर मेरे तरफ, स्टेज के तरफ। एक एक आसन करते करते शरीर में ऊर्जा, मन में समाधान, शांति का अनुभव। पूरा प्रांगण 15,000 से ज्यादा लोग अभ्यास कर रहे हैं यहाँ। कितना शांति बनी हो। वही योग। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अपने सिर को हथेली पर रखिए। आराम करें, विश्राम करें। सिर को साइड में रख लिया तो और भी अच्छा लगे। लेफ्ट और राइट साइड। यस। मकरासन हृदय संबंधी अनेक विकारों को समाधान। जब भी हम तनाव में आ जाते हैं, दिल का धड़कन बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आराम से मकरासन करें। समाधान, शांति। हर एक पहलू पर योग हमारा सहाय। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
दोनों पैरों को मिलाई, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें, पूरा स्ट्रेच करें जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। पूरा लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए, अपने हथेलियों को सीने के पास रखिए, सीने के पास रखिए, एल्बोज समांतर रहे। श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाए, जितना हो सके तो इतना, पूरा भुजंगासन ऊपर के वो देखिए, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। अच्छा लग रहा है यहाँ देखने को, बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। ये आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई। दोबारा एक बार मकरासन में विश्राम करें। मकरासन, क्रकोडाइल पोस्चर। हर एक प्राणी से कुछ तो कुछ हम सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए शलभासन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को पूर्ण शलभासन नहीं कर सकते, एक एक पैर उठाए, अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन के तरफ रखिए, ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए। लिफ्ट बोथ द लेग्स अप, करो ऊपर, अप, वेरी गुड। अब सामान्य श्वास के साथ बने रहे। वापस आइए, श्वास छोड़े, विश्राम करें, दोनों हाथों को वापस ले आए, मकरासन में विश्राम करें। एक्सलेंट। अब हम कुछ आसन पीठ के बल लेटकर करेंगे। धीरे से बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हर एक शरीर का स्थिति बदलते हुए शरीर को कुछ आराम मिलता है। अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो, इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़े, अपने एड़ियों को या एंकल्स को नितंब के नजदीक ले आई, अपने ढकनों को, एंकल्स को पकड़ लीजिए। होल्ड योर एंकल्स प्लीज। अब श्वास लेते हुए नितंब या कमर को ऊपर उठाए, फूलनामा आकृति बनाए। मेक योर बॉडी जस्ट लाइक ए ब्रिज। ऊपर उठाए, ऊपर उठाए, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। सेतु बंधासन अवसाद की रोकथाम में बहुत सहायक होता है। अब श्वास छोड़े, वापस आइए, पीठ के बल विश्राम करें, दोनों पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए 30 या 45 डिग्री। दोनों पैरों को, जो नहीं कर सकते थे एक ही पैर उठाए, बहुत बढ़िया, उठाए उठाए उठाए, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को नीचे लाइए। एक बार लंबा सांस लीजिए, श्वास की मात्रा देख लीजिए, एकदम श्वास की लंबाई बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हुए अर्धहलासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न पाए वो हाथों को सहारा ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। एकदम फोटो बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हमारे फोटो बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाली, फर्स्ट क्लास। अर्धहलासन हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा सरल आसन है। यही से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। होल्ड योर नी प्लीज। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने के प्रयास करें। अपने ठोड़ी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सके तो इतना करें, लेकिन प्रसन्नता के साथ करें।
प्रयास तो करना है। बहुत बढ़िया। पवन मुक्तासन पेट की बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास माना जाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आई। थोड़ी देर दोनों पैरों को सीधा करें, हाथों को बगल में रखें। अब हम 1-2 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। सबके इंतजार होता है हमेशा। दोनों पैरों को मिलाते हुए शरीर को पास रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाए, जमीन पर रखें। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास करें पूरा शरीर को शवासन करने से पहले। और 1-2 बार लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लीजिए पूर्ण ढंग से। अब श्वास छोड़िए। एक बार आप पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आखिरी बार सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वास, धीरे से श्वास छोड़िए। बढ़िया। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, पैरों को थोड़ा अलग रखें। आंखों को सहजता से बंद कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखने का प्रयास। सबसे पहले शरीर शिथिल हो। अपने पेट श्वास प्रश्वास के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। It goes up with inhalation, it sinks down with exhalation. देखो कितना मैकेनिज्म है वहां। थोड़ी देर देखते रहिए, आपके मन एकदम स्थिरता के साथ, काम, क्वाइट। जैसे जैसे श्वास की गति धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे मन प्रसन्नता के ओर, समाधान, शांति, प्रसन्नता, वही शवासन का उद्देश्य। शवासन का आनंद। धीरे से दोनों पैरों को जोड़िए, बाई या दाई ओर करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए मेरे तरफ। एक्सलेंट। अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हुए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले कपालभाति। किसी भी ध्यानात्मक आसन में फिर से बैठ जाइए। आंखों को बंद करें। कमर गर्दन हमेशा सीधा रखने का प्रयास। योगाभ्यास में हाथों को ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें। गहरा लंबा सांस लेना है, थोड़ा छाती ऊपर करना है और पेट को दबाना है। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पहला चक्र 30 आवृत्तियों से प्रारंभ करेंगे। सांस लीजिए, छाती ऊपर, स्टार्ट। श्वास छोड़े, एक्सेल, कमर सीधा, आंखें बंद। कपालभाति का प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर, ऑन द फोरहेड। कपालभाति हेल्प्स टू क्लींस द सेंट्रल साइनसेस। अगला चक्र 30 आवृत्तियों से। सांस लीजिए, छाती ऊपर करें, थोड़ा सा पेट अंदर जाएगा। स्टार्ट करें। एक्सेल, श्वास छोड़िए, विश्राम करें।
कमर गर्दन हमेशा सीधा। ये प्राणायाम के पूर्व तैयारी है। फ्रंटल साइनस पूरा अपना क्षमता के अनुसार। आखिरी बार कपालभाति, छाती ऊपर, श्वास लीजिए। एक्सेल, श्वास छोड़िए। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। कपालभाति से कुछ अनोखा अनुभव, अपने आप प्राणायाम करने का मन। अब हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाई हथेली से ध्यान मुद्रा बनाएं, दाई हथेली से नासाग्र प्राणायाम मुद्रा, जिस ढंग से। अब दाई नासिका लीजिए। अब दाई नासिका रंध्र से बाई नासिका रंध्र से सांस लेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, बंद करें। दाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। पुनः दाई नासिका रंध्र से ही सांस लीजिए। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। एक चक्र हुआ, 4 चक्र और करें। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, exhale through the right. Again inhale through the right itself, exhale through the left. जारी रखिए। हर श्वास प्रश्वास के साथ श्वास की गति धीमी और गहरा लंबा होता जाएगा। नाड़ी शोधन का अभ्यास हर रोज 20-30 बार करते हैं। अनेक बीमारियों से मुक्त, तनाव से मुक्त जीवन में एक सजगता, सफलता के ओर। अब बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आए। दोनों हाथों को नीचे रखें, घुटनों पर। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाना है। 5 बार करेंगे। श्वास ट्यूब से लेंगे, नाक से श्वास छोड़ेंगे। पहला अभ्यास, सांस लीजिए, छोड़िए। 4 बार और सांस लीजिए। श्वास छोड़िए नाक से। दोबारा नाक से श्वास छोड़िए। चौथा बार श्वास छोड़िए। आखिरी बार शीतली, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए धीरे से। आराम से बैठ जाइए। शीतली का प्रभाव। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सन्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। 5 बार करेंगे। सब मिलकर ऐसे करें, यहां का ध्वनि वहां नर्मदा तक चले। ठीक है, सांस लीजिए। एक बार और सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए।
एक बार लंबा श्वास। अब दोनों हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत मददगार है। अब थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। आप सभी प्रदेशवासी दाजी के साथ पिछले 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं, वही यहाँ 2-3 मिनट सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें, कंधे को शिथिल कीजिए। We'll do it in 3 steps. First body, शरीर को देखें। पूरा शरीर शीतल होते ही श्वास पर ध्यान दें। साक्षी बने, सिर्फ देखना है मुझे। जैसे श्वास धीमी होती जाती है, मन में विचारों का सिलसिला कम होती जाती है। रेड्यूस थॉट्स। श्वास प्रश्वास के साथ मन शांत निर्मल, उसमें सदा शुद्ध विचार, समर्पणा भाव, प्रेम भाव भगवान के प्रति अपने आप जागेगा। हमारे अंदर भगवान को दर्शन करता है। 1 मिनट हम ध्यान में अपने स्वास्थ्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए सब मिलकर ध्यान करेंगे। ध्यान मन को शांत रखता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। शांत मन में सुंदरता। शांत मन से हम संकल्प करते हैं, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखने का प्रयास। संतुलित मन में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। देश के विकास के लिए समर्पित हूं, समर्पित हूं, समर्पित हूं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण करें। सब लोग मिलकर एक बार ओंकार, उसके बाद मेरे साथ शांति पाठ। सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए, हाथों नीचे लाइए। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं ईश्वर बसव रेड्डी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से, प्रदेश के सरकार की ओर से आपको सभी को धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।